नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसीं देख रहे हो पंजाब डायरी। अपने चेहरे ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ। ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਅੱਖ, ਨਕਲੀ ਕੰਨ, ਨਕਲੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤਾਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ, UK ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਦੇਦਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਫਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ PGI ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਸਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਪਰ ਐਨਕ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਿਆਣਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पेशेंट है जिसका चेहरा आधा यहाँ से हटाया हुआ था, इसने इलाज करा के अपना ये वाला पार्ट और नीचे तालू वाला पार्ट सारा हटवा लिया सर्जरी के बाद। उसके बाद ये बहुत सारे अस्पतालों में गई पर इसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हो पाया। प्लास्टिक सर्जरी से हम इसके चेहरे का भाग तो बना सकते हैं ये, पर इसकी आँख या गाल का हिस्सा हम दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में ये पेशेंट ना तो किसी से शक्ल में ना मिलाने लायक रह जाती है, ना ये पेशेंट ऐसी रह जाती है कि किसी सोशल फंक्शन में या कहीं पर जा सके। तो उस केस में इस पेशेंट का सारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और इसका आत्मविश्वास अंदर से टूट जाता है। हमारी ब्रांच, इसको हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स कहते हैं, और इस ब्रांच में हम दांतों के अलावा नकली उंगली, नकली कान, नकली नाक सब कुछ बना सकते हैं। तो इसी उसको आगे ले जाते हुए मैंने इसमें एक नकली गाल और नकली आँख से चश्मे से अटैच करके इस पेशेंट को दिया। तालू भी कवर किया, डेंचर को मॉडिफाई करके बनाया गया, उसको ऑब्चुरेटर कहते हैं। उसकी वजह से ये अपना सामान्य जीवन जी सकती है। तो इस तरह की तकनीक जो है ये बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं भारत में, ये बहुत कम जगह पर होती है और बहुत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, इसके लिए बहुत पैशन चाहिए करने के लिए। तो मेरी ब्रांच के भी डॉक्टर्स क्लिनिकली इसको प्रैक्टिस नहीं करते,
कुछ कॉलेजेस में ये चीज़ें अटेम्प्ट होती हैं, पर नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में डॉक्टर्स इसको करने से कतराते हैं। बहुत जगहों पर बहुत डॉक्टर से बात हुई है इस पेशेंट की और भी जगहों पे, पर किसी ने भी इसका केस करने से कोई आगे नहीं बढ़ा इसका केस करने से। पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो मैंने ये केस किया। पुणे जाकर भी मैंने इस केस में काफ़ी सीखा है। मैक्सफैक्स इंडिया करके लैब है, वहाँ पर मैंने सिलिकॉन का सारा काम इसका सीखा है। किस तरह के पेशेंट इसमें ज़्यादा आपको मिलते हैं? सर, इसमें नॉर्मली जो हमारे उत्तरी भारत में ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। शायद जो हम जर्दा वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली यूपी वाले साइड पे या राजस्थान वाले साइड पे और बाकी जगहों पर भी। तो उन केसेस में ओरल कैंसर में जितना चेहरे का हिस्सा होता है वो सारा निकाल दिया जाता है। तो उन केसेस में हम ये इस तरह के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन प्रोस्थेसिस, जिससे उस पेशेंट को एक आत्मविश्वास आए आगे की अपनी ज़िंदगी सामान्य जीने की। नहीं तो उसको चेहरा देखकर हमेशा अपना ओरल कैंसर ही याद आता रहेगा, भले ही उसका ट्रीटमेंट हो गया है। कितना खर्च आएगा ऐसी अगर कोई कराना चाहे तो? सर, इसमें डिपेंड करता है कि आपका डिफेक्ट या मतलब आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जैसे अगर आपकी उंगली कटी हुई है उसका अलग से है, अगर आपका चेहरे का कोई हिस्सा है जिसमें उसके हिसाब से है। बाकी इसका खर्चा करीब 35 से 75 हज़ार तक का खर्चा है इसमें। तकनीक क्या है, उसका क्या तकनीक कैसे होता है ये सब कुछ? सर, इसमें ये है कि नॉर्मली जो हम लोगों को सिखाया जाता है, डेंचर जैसे हम लोग बनाते हैं, तो डेंचर में हम पहले कच्चा नाप लेते हैं, फिर पक्का नाप लेते हैं। कुछ उसी तरह की तकनीक हम इसमें यूज़ करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा हमारे स्किल बहुत ज़रूरी है हमें करने के लिए। तो हम इसके चेहरे का पूरा मैंने नाप लिया, फिर उसके बाद उसकी एक कास्ट बनाई गई, उस कास्ट को डुप्लीकेट किया गया, उस कास्ट पे पहले मोम की सारी प्रतिमा बनाई गई। मोम की प्रतिमा बनाने के बाद उसको सिलिकॉन में डुप्लीकेट किया गया। उसकी आँख को रख के देखा गया उसकी नॉर्मल आई से कि उसकी आँख सही लेवल पे आ रही है कि नहीं आ रही है। दोनों आँखें बराबर देखने में उनका कलर मैच किया गया, उनकी पलकों को देखा, इनकी पलकों से मैच किया गया इनको। तो ये कलर पूरा जो ऊपर वाला सिलिकॉन का कलर है वो भी पूरा इनके स्किन के टोन से मैच किया गया, जिससे कि कम से कम आर्टिफिशियल लगे। अब इतना बड़ा डिफेक्ट छुपाना आसान नहीं होता, पर पूरी कोशिश की गई कि ये डिफेक्ट छुपे और ये पेशेंट का आत्मविश्वास बढ़े। तो इस तरीके से इस टेक्निक को किया गया। और बाकी जो लैब प्रोसीजर्स हैं वो सीखने के लिए जो पुणे की लैब है उसमें सीखे गए, मैंने सीखे हैं वो प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से इसका काम किया गया। पंजाब में कहीं और हो रहा है ऐसा काम? सर, अगर पंजाब में मेरे हिसाब से मैंने नहीं सुना। आई प्रोस्थेसिस बनती है जो आँख केवल आँख जो होती है वो तो बहुत लोग बनाते हैं पंजाब में। पर इस तरह का, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया कि क्या इस तरह का वो काम कर सकते हैं, लैब का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मैं करीबन 3-4 दिन तक रिगरस मैंने इसमें रिसर्च करी कि शायद कोई कर सके इस काम को, क्योंकि मैं सच में इस पेशेंट की हेल्प करना चाहती थी। मेरा बहुत मन है कि इस तरह के पेशेंट्स की हेल्प हो और इस तरह के पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। मैं किसी पेशेंट के अपनी स्किल में स्किल काम आ सके मेरी इस तरीके की। तो मैं बहुत पैशनेट थी, पर मुझे पंजाब में कोई रिसर्च करके कोई भी इंसान नहीं मिला, बल्कि मैंने कैलकाटा और बहुत सारी जगहों पे जिन लोगों ने यूट्यूब वीडियोस तक डाल रखी थी ऐसे केसेस की, उन्होंने भी मेरी कोई एज सच हेल्प नहीं करी। बस मेरे को यहाँ पुणे में डॉक्टर मोहित दुधानी करके लैब जो खुद भी प्रोस्थेडोंटिस्ट हैं, मेरी ही ब्रांच के हैं, वो भी शायद पैशनेट हैं इस ब्रांच के लिए, इसलिए उन्होंने लैब खोली। वो यूके से ट्रेंड हैं, उन्होंने यूके से पढ़ाई करी हुई है, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया इस चीज़ के लिए। बाकी मुझे और कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। अगर हेल्प कर भी रहा था कोई तो उनके कॉस्ट इतने ज़्यादा थे, 1.5-2 लाख रुपए वो ले रहे थे। तो इस तरह के पेशेंट्स नहीं पे कर सकते इतने पैसे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो ना के बराबर ही है। इसको क्या हुआ था जिसका ये करना पड़ा इतना बड़ा? जैसे हम सुन रहे थे, कोविड के बाद एक ब्लैक फंगस हुआ था म्यूकरमाइकोसिस करके, उसमें चेहरे का जितना पार्ट ख़राब हो गया था वो निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाकी चेहरा अगर हम उसको रखते उस पार्ट को तो बाकी शरीर में वो बीमारी फैल जाती और पेशेंट की डेथ हो जाती।
तो उसकी उसकी जान बचाने के लिए इतना पार्ट निकालना पड़ता है। पर वो जब पेशेंट बच जाता है उसके बाद वो सामान्य जीवन जीना उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चेहरा अपना ना देख सकता है। ये जैसे पेशेंट घूमती थी तो ये मुंह पे चुन्नी लगा के या चेहरे पे कॉटन लगा के घूमती थी, वो मतलब अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं थी। हम भी इस पेशेंट को करते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई और पेशेंट आके इसको देखे, क्योंकि सब बहुत अजीब सा रिएक्ट करते थे। तो उस पेशेंट के लिए मुझे दिल से लगता था कि इस पेशेंट का मैं कुछ भला कर पाऊँ। अगर मेरे में भगवान ने मुझे इस तरह का कुछ बनाया है, कुछ दिया है, तो मैं कोशिश करूँ कि ये पेशेंट की हेल्प हो सके और इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प हो सके। पर ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि ना डॉक्टर्स को पता है ना पेशेंट्स को पता है कि वो किसको कांटेक्ट करें। मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, मुझे भी बहुत मेहनत लगी रिसर्च करने में कि कौन मेरी इस तरीके से मदद कर सकता है, पर मैं करना चाहती हूँ ये पेशेंट। मैं डेंटिस्ट हूँ। सब लोग कहते हैं कि दांत लगाने वाले लोग ये सब काम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बार आँखों के पेशेंट आ जाते हैं कि हमारी आँख चेक कर दो। तो मैं आँख चेक करने वाली डेंटिस्ट नहीं हूँ। मैं आँख लगा सकती हूँ। मैं कोई भी मिसिंग पार्ट बॉडी का जो छोटा है, पूरे लिम्स नहीं लगा सकती, पूरे पैरों के पंजे नहीं लगा सकती मैं। लेकिन अगर आपकी पैर की छोटी सी उंगली कटी हुई है, या आपकी उंगली हाथ की कटी हुई है, या नोज़ आपकी नहीं है, नाक का कोई हिस्सा नहीं है, गाल का कोई हिस्सा नहीं है, आँख अगर आपकी एक तरफ की है, एक तरफ की बंद हो गई है या थोड़ी सी खुली हुई है पर आँख नहीं है उसके अंदर, या तालू का कोई हिस्सा है, तो ये सब मैं लगा सकती हूँ। हमारी स्पेशलिटी मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिक्स हमें अलाउ करती है कि हम इस तरह का काम कर सकें। और सिलिकॉन का काम बहुत कम होता है इंडिया में, और सिलिकॉन का काम हमारे कॉलेज में भी हमको नहीं सिखाया गया था, पर मैंने जाके अब दोबारा से पढ़ाई करी है इसके बारे में, तो मैं अब सीख गई हूँ ये काम। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।